Hello, dear learners. Welcome to LIMS, Legend Institute of Management and Sciences. And this is your course instructor, Amreen Ayaz Khan. Your course is Psycholinguistic. Our lecture is lecture number 6. Well, dear student, today we are going to talk about Stats Word Class Association Theory. So first of all, we'll discuss the types of association. Word association represents just one type of association with human and his consciousness operate with. There are also visual, related to sight, auditory, related to hearing, tactile, that is used for the sense of touch, gustatory, concerned with tasting, and olfactory association, which means relating to sense of smell. So all these sensuousness are included in this association. Each of these types of association is tied with specific sensory organs. Moreover, all these types of associations are interconnected. When word association may arise in response to stimulation of any of these senses, for example, a person sees an object and associate the word with it. ठीक है, किसी शख्स ने एक ऑब्जेक्ट को देखा, फिर वो अपने नॉलेज से या किसी से भी वर्ड जो है वो बुक से जो भी उसने पढ़ा हुआ है वहाँ से रिकॉल करके एसोसिएट करता है उस वर्ड को विद दैट ऑब्जेक्ट. द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट एज वेल एज द अकम्पनिंग वर्ड, कि उस ऑब्जेक्ट का नेम क्या है वो उससे रिलेट करेगा, एसोसिएट करेगा, एंड देन अदर वर्ड्स जो कि उससे रिलेटेड होंगे. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड दीज वर्ड्स माइट बी connected with the qualities or the characteristics of that object. Imagine that you are in the city. So I'm going to give you an example. कि आप imagine करें कि आप एक शहर में हैं and you have to cross the road. You observe the road equipment made in the form of box with 3 different sections. One is lighting with either of red, yellow or green. ठीक है, ट्रैफिक सिग्नल जिसे हम लोग कहते हैं. You merely see this in the traffic lights. You do not even think about why it is so. ठीक है, आपको पता है कि ये लाइट जो है वो ट्रैफिक सिग्नल के तौर पर यूज़ होती हैं, गाइड करती हैं ट्रैफिक को कि कब रुकना है, कब रेडी टू स्टार्ट रहे हैं एंड कब उन्होंने स्टार्ट करना है ड्राइविंग को. एंड we don't think why it is so, कि ऐसा क्यों है, what is the reason behind this. The visual image of a vertical box which has 3 sections mounted on a column near the pedestrian crossing causes word association, traffic lights and related characteristics, green light. ठीक है, so these words remind us that and associate with the traffic signals, traffic lights. Conversely, when a person reads a book and sees printed word traffic lights, visual association start to work. कि उस शख्स ने जो रोड पर, क्रॉस रोड पर ट्रैफिक लाइट्स देखी, उनका इमेज एट दैट टाइम उसके माइंड में आएगा. A man imagine a spatial image of that traffic light, sees its color signal. उसके कलर के सिग्नल उसे याद आएंगे कि हर कलर जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट एक्शन को. नाउ वी विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एसोसिएशन बेस्ड ऑन साउंड परसेप्शन. ठीक है, पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दी, दैट वॉज रिलेटेड टू विजुअल परसेप्शन. ठीक है, ट्रैफिक लाइट्स की.
अब हम देखेंगे साउंड परसेप्शन, साउंड्स से रिलेटेड एक एग्जाम्पल ऑफ वर्ड एसोसिएशन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ मैन हियर्स अ वर्ड वाटरमेलन. ठीक है, वाटरमेलन जब हम सुनते हैं एक वर्ड या एक शख्स जब सुनता है, ही इमेजिन्स इट्स विजुअल इमेज. तो सबसे पहले तो विजुअल इमेज आ जाती है कि वो देखने में कैसा लगता है. रेड कलर का है, उसका आउटर कवर जो है वो स्किन ग्रीन है. ही सीज रेड जूसी पल्प, टाइनी ब्लैक सीड्स, कि उसके अंदर छोटे छोटे से ब्लैक कलर के सीड्स एंड ग्रीन ग्रीन्स. समवन विल फील हिज टेस्ट. ठीक है, कोई उसका टेस्ट भी फील करने लग जाएगा. अभी हालांकि सिर्फ एक वाटरमेलन का वर्ड हमने सुना है. द साउंड स्टिमुलस प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड कॉरिस्पॉन्डिंग टू सेवरल साउंड्स लाइक वा, अ, ट, ERMELON. Suggest word association, that is watermelon. Word association immediately raised a number of visual and gustatory association, and these in turn again word association, feeling the smell of something tasty. For example, apple pie. You will be immediately awakened with word association like pie, apple, and it's delicious, and it is available at home, so you will be using the word home. Moreover, certain words often cause back reaction by the sensory organs. कुछ ऐसे भी वर्ड है जो कि बैक रिएक्शन की तरफ जाते हैं यूजिंग द सेंसरी ऑर्गन्स. फॉर एग्जाम्पल, ट्रेमलिंग में अकर in response to pronounced word or simply in reason to an unpleasant thought. You can smell the grass of the field just by looking at the colorful picture of the green meadows. ठीक है, आप चरागाह में गए, आप पार्क में गए, वहाँ पर आपने ग्रीन ग्रास देखा गार्डन में या लॉन में. ठीक है, तो एक कलरफुल सा पिक्चर आपके सामने आ जाता है. यू कैन स्माइल रिमेंबरिंग एन एंटरटेनिंग इवेंट फ्रॉम योर चाइल्डहुड. ठीक है, एक ऐसा इंसिडेंट था जो कि आपके चाइल्डहुड में बड़ा कॉमिक था, बड़ा फ़नी था. तो जब आप उसको आने वाले दिनों में इन योर एडल्ट लाइफ जब भी आप उसको रिकॉल करते हो या आपको बाय चांस सडनली वो आपको याद आ जाता है, तो वो आपकी होंठों पर मुस्कुराहट ले आता है, आपके फेस पर मुस्कुराहट, स्माइल आ जाती है. यू कैन हेयर द स्वीट वॉइस ऑफ अ डार्लिंग जस्ट थिंकिंग अबाउट हिम. ठीक है, बाज़ औक़ात जो हमारे बहुत ही प्यारे हमें अजीज़ होते हैं, उनके बारे में सोचते ही हमारे कानों में उनकी स्वीट मेलोडियस वॉइसेस जो हैं वो गूंजने लगती हैं. द मोस्ट प्लेजेंट एंड रिमार्केबल थिंग इज़ दैट पीपल मे नॉट नो एनीथिंग अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एसोसिएशन एंड दस बी erudite, literate and develop personality. The mechanism of association is not created by human being, it is the invention of nature. अब ये जितनी भी philosophy है, mechanism है, that is made by nature, that is not created by human being. The importance of association in human thinking cannot be overestimated. Now I am going to tell you about the stats word class association theory, and it is the extension of Watson theory. ठीक है, वाटसन की जो हमने पढ़ी थी इससे पहले की थेरी, दैट वाज वर्ड एसोसिएशन थेरी, ये उसी थेरी का ही एक्सटेंशन है, दैट इज़ क्लास एसोसिएशन थेरी. इन द वाटसन थेरी इट इज़ द वर्ड एसोसिएटेड टू फॉर्म सेंटेंसेस. वाटसन की थेरी में हमने देखा था कि वर्ड्स जो हैं वो एसोसिएट्स होते थे. And he stated that a sentence is formed by the association of words. The sentences then will develop into words classes such as noun, verb, adjective, adverb and articles. ठीक है, उस वर्ड की जो एसोसिएशन होती थी वो नाउन से, पार्ट्स ऑफ स्पीच से होती थी. The work of stats that was given in 1968, which appeared in the 1960s, may be viewed as an extension of Watson ideas. Essentially, he viewed a sentence as being formed by the association of a word classes, noun, verb, etc. with one another. कि वर्ड की क्लासेस हैं जो कि जुड़ी हुई हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के साथ. Thus, while for Watson individual words are connected. सो वाटसन की थेरी को हम ये सिंगल
फ्रेज में, सेंटेंस में इस तरह कह सकते हैं कि वर्ड जो हैं वो कनेक्टेड हैं, इंडिविजुअल वर्ड जो है वो कनेक्टेड हैं आपस में. फॉर स्टैट्स इट इज़ वर्ड विच रिप्रेजेंट वर्ड क्लासेस दैट आर कनेक्टेड. मगर अगर जब हम स्टैट की बात करते हैं तो वो यहाँ पे कहते हैं कि वर्ड की जो क्लासेस हैं वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, ना कि वर्ड. टू एक्सप्लेन द थेरी लेट मी यूज़ द सेम एग्जाम्पल एज इन द वाटसन थेरी. ठीक है, जो एग्जाम्पल वहाँ यूज़ की गई हम वो एग्जाम्पल को यहाँ पे देखेंगे. इफ़ द आइस मेल्टेड एंड द बॉय मेल्टेड द वैक्स वर लर्नड, देन एज विद वाटसन द कनेक्शन बिटवीन द ice melted, the boy melted the and the wax would also be formed. कि जब हम इस तरह का एक एग्जाम्पल लेंगे तो इससे रिलेटेड ये तमाम वर्ड्स जो हैं वो वजूद में आएंगे. नाउ इफ प्राउड लर्निंग एंड एस्टैब्लिश्ड दैट द बिलोंग्ड टू अ क्लास आर्टिकल लाइक बॉय, आइस एंड वैक्स बिलोंग टू अनदर क्लास. ठीक है, अगर हम देखते हैं तो बॉय, आइस एंड वैक्स जो है ये नाउन्स हैं सारे. ठीक है, ये नाउन क्लास से एसोसिएटेड हैं. एंड मेल्टेड बिलोंग टू स्टिल अनदर क्लास दैट इज वर्ब. ठीक है, मेल्ट जो है वो एक वर्ब है. देन सब्सटीट्यूशन विद इन अ वर्ड क्लास में टेक प्लेस. ठीक है, अब क्या होगी, इन वर्ड क्लासेस में ही सब्सटीट्यूशन जो है वो वजूद में आएगी. इन इफेक्ट द आइस, the boy, the wax represent an article plus noun combination. यानी कि जो हमें कॉम्बिनेशन नज़र आएगा वो आर्टिकल और नाउन का होगा. while ice melted, अगर हम देखें यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ये है कॉम्बिनेशन ऑफ आर्टिकल एंड नाउन. On the other hand, boy melted, here is boy melted represent a noun and verb. जैसे कि boy जो है वो noun है और melted जो है वो इसमें verb है. दूसरी एग्जाम्पल देखें आप, noun और verb का जो है यहाँ पर कॉम्बिनेशन किया गया. As a result, not only could the novel grammatical sentences the boy melted the ice be generated, but so could the girl melted the ice, as long as girl and boy had been previously learned as member of the same class. क्योंकि दोनों ही नाउन हैं तो हम बॉय की जगह पे गर्ल्स जो है वो एज ए सब्सटीट्यूट हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं. सेम क्लास से बिलोंग करते हैं. ये वाटसन थेरी बेस्ड एज इट इज़ ओनली द कनेक्शन ऑफ पर्टिकुलर वर्ड्स. क्योंकि ये क्या है, पर्टिकुलर मखसूस वर्ड्स का कनेक्शन है. डज नॉट अलाउ फॉर अ नॉवल सेंटेंसेस लाइक दिस टू अकर. द आइडिया ऑफ वर्ड क्लास एंड सब्सटीट्यूशन विद इन अ क्लास इज व्हाट मेक्स स्टैट्स थ्योरी डिफरेंट एंड मोर कम्प्लेक्स देन वाटसन. सो ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है डियर स्टूडेंट कि जो आइडिया है वर्ड क्लास का एंड सब्सटीट्यूशन विद इन द क्लास, कि एक तो वर्ड की क्लास है और उसी क्लास में आप सब्सटीट्यूशन जो है वो यूज़ करेंगे. यही वो चीज़ है जो कि स्टैट्स की थेरी को डिफरेंट एंड कम्प्लेक्स बनाती है एज़ कंपेयर टू वाटसन थेरी. एडिक्वेसी ऑफ द लैंग्वेज नॉलेज. एडिक्वेसी मीन acceptability. However, stats theory suffer from some of the same deficiency as Watson. जैसा कि हमने देखा कि वाटसन की थ्योरी में भी कुछ वीकनेसेस थी, डेफिशिएंसीज थी. सेम इज़ द केस विद स्टैट्स थ्योरी. द सेम मैकेनिज्म or the philosophy which will produce novel grammatical sentences will produce ungrammatical ones as well. इनके कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी फॉर्म होंगे जो कि ग्रामेटिकली सही नहीं होंगे. द सेम नॉन सेंसिकल कहते हैं मीनिंगलेस को. नॉन सेंसिकल स्ट्रिंग्स ऑफ वर्ड विच वाटसन थ्योरी प्रोड्यूस. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय melted the ice, melted the boy, melted.
will also be produced by STAT. The only difference is being that other similarly nonsensical strings will be produced by substitutions. For example, the girl melted the ice, melted the girl, melted. यानी कि हमने विद इन वन क्लास ऑफ नाउन बॉय की जगह गर्ल की सब्स्टिट्यूशन की है. अब इसमें फैक्ट ये है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी स्ट्रिंग्स कैन बी जज एज अनग्रामेटिकल विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट. क्योंकि इस एग्जाम्पल में हमें कोई भी रेलिवेंट कॉन्टेक्स्ट नज़र नहीं आ रहा, तो हम इसको अनग्रामेटिकल ही कंसीडर करेंगे. दैट द स्पीकर मस्ट हैव अदर एसेंशियल नॉलेज विच कंट्रोल फॉर द प्रॉपर फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस. दिस नॉलेज वट एवर इट इज़ नॉट स्पेसिफाइड एज स्टैट्स थ्योरी. कि ये जो नॉलेज है स्टैट की थ्योरी की तरह से स्पेसिफाइड नहीं है. ऑफ कोर्स द फैक्ट दैट स्टैट्स थ्योरी इज़ अनेबल टू अकाउंट फॉर एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लेंथी नॉवल ग्रामेटिकल सेंटेंसेस. कि इसकी लेंथ का हमें अंदाज़ा नहीं कि कितनी भी बड़ी लेंथ हो सकती है, और ग्रामेटिकली जो है वो कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर भी नहीं होता. State theory is unable to account for an unlimited number of lengthy novel grammatical sentences, has no bearing on the idea of grammatical word classes like noun and verb, etc. All languages theorists believe that the word can generally be sorted into classes. तमाम जितने भी लिंग्विस्ट हैं वो बिलीव करते हैं, या जितने भी थ्योरिस्ट हैं उनका ये मानना है कि वर्ड जो है वो अपनी क्लासेस में ही सॉर्ट आउट किए जाते हैं. However, they do not agree on this what the basis for classification should be. मगर उनका भी इस चीज़ पर कोई एक जो है वो बेस नहीं है, एक थॉट नहीं है कि इस क्लासिफिकेशन की बेस क्या होनी चाहिए. दो बेसिस जो है वो प्रपोज की गई थी ओवर द सेंचुरीज. ठीक है, दो बेसिस जो है वो टोटली प्रपोज की गई थी. एक जो थी वो सिंटैक्टिक है और दूसरी सिमेंटिक है. सिंटैक्टिक एंड सिमेंटिक. स्टैट इज़ एन एडवोकेट ऑफ द सिंटैक्टिक बेसिस. ठीक है, अब जो स्टैट्स है वो इस चीज़ को मानता है कि इसकी जो बेस है क्लासिफिकेशन की वो सिंटैक्टिक है. As were most of the linguists during what has been called the era of structure linguistic. अब structure linguistic क्या है मैं आपको बताती चलूँ यहाँ पे. That is also known as structuralism. ठीक है, इसको structuralism भी बोलते हैं. Structure linguist. Structural linguist denotes school or theories in which language is conceived as a self-contained, self-regulating semiotic system. ठीक है, ये whose elements are defined by their relationship to other elements within the system. Structural linguistics define as the study of language based on the theory that language is a structural system of formal units such as sentences and syntax. इनका मानना ये है कि स्ट्रक्चरल लैंग्वेज या लिंग्विस्टिक क्या है, जो कि एक स्ट्रक्चरल सिस्टम है फॉर्मल यूनिट का, और ये यूनिट क्या है, सेंटेंसेस हैं, और इसको हम कहते हैं फोनेटिक्स. यहाँ पर मैं आपको एक और पॉइंट बताती चलूँ कि द फादर ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक इज़ फर्डिनेंड डी साशोर. ठीक है, ये इसके फादर हैं. Stat approvingly quotes the following from Brown and Burko in 1960s. Theorists who at that time were greatly influenced by the structural ideas. ठीक है, उस एज के जितने भी थ्योरीज थे वो स्ट्रक्चरलिज्म या स्ट्रक्चरल आइडियाज़ से बहुत ज़्यादा
इन्फ्लुएंस थे। और इनका आइडिया क्या था? द लिंग्विस्टिक साइंटिस्ट डिफाइन द पार्ट ऑफ स्पीच। उन्होंने पार्ट ऑफ स्पीच को कैसे डिफाइन किया? इन प्योरली सिंटैक्टिक और फॉर्मल टर्म्स में डिफाइन किया पार्ट्स ऑफ स्पीच को। इट हैज़ शोन दैट द इंग्लिश टीचर्स सिमेंटिक डेफिनेशन, जैसे कि उन्होंने डेफिनेशन दी नाउन से रिलेटेड कि नाउन क्या है, नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग, आर इम्प्रीसाइज approximation to the underlying but less obvious syntactic facts. The noun is indescriptive linguistic is a class of word having similar privileges of occurrences. While as the author says, अब authors का यहाँ पे क्या कहना है कि semantic basis जो है for the word classes is often imprecise. कि अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं लाइक नाउन की, कि नाउन जो है वो एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो कि किसी भी चीज़ के, किसी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को जाहिर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उनका कहना है कि ये जो क्लास है इज़ ऑफन इम्प्रीसाइज है। इन एक्चुअलिटी इट इज़ मच सुपीरियर डेफिनेशन टू द प्योरली सिंटैक्टिक वन। फॉर इफ वर्ड क्लासेस आर टू बी बेस्ड ऑन पोजिशन, privilege of occurrences, a detailed consideration shows that such a notion is entirely inadequate. कि इस तरह के नोशन को, इस तरह के आइडिया को inadequate माना गया, नाकाफ़ी माना गया। The reason why stats theory fails to work is because, ठीक है, जैसे कि वाटसन की थ्योरी भी फेल हो गई थी, सेम इज़ द केस कि स्टैट्स की थ्योरी भी फेल हो गई, ये भी ज़्यादा प्रोग्रेस ना कर सकी। अब इसकी रीज़न क्या है कि ऑन अ वर्ड टू वर्ड बेसिस, कि एक वर्ड टू वर्ड बेसिस पर ही इसकी जो है वो फेलियर जो है वो बेस करती है। ऑलमोस्ट एनी वर्ड क्लास कैन बी फाउंड टू फॉलो एनी वर्ड क्लास विद अ फ्यू एक्सेप्शंस। ठीक है, जो उसकी फेलियर की रीज़न मानी गई वो यही है कि किसी भी वर्ड की जो क्लास है वो फाउंड की जा सकती है किसी भी वर्ड क्लास को फॉलो करके, ठीक है, जिसमें बहुत ही कम एक्सेप्शंस हैं। परहैप दैट ऑफ आर्टिकल प्लस आर्टिकल, यानी कि अगर आर्टिकल एंड आर्टिकल की एग्जांपल लें, डज नॉट अकर, ऐसा कभी भी नहीं होता कि आर्टिकल और आर्टिकल साथ साथ आ रहे हों। दिस बीइंग द केस दैट विर्चुअली एनी वर्ड क्लास कैन फॉलो एनी वर्ड क्लास, कि कोई भी वर्ड क्लास हो वो किसी भी वर्ड क्लास को इजीली फॉलो कर सकता है। देन द वर्ड क्लास एसोसिएशन थ्योरी परमिट्स विर्चुअली एनी वर्ड टू फॉलो एनी वर्ड। ठीक है, कि इसमें जो है वो कोई स्ट्रॉन्ग जो है वो इस तरह का लिंक नहीं है, वर्ड जो है वो एसोसिएशन किसी भी वर्ड क्लास को फॉलो कर सकता है। सच अ थ्योरी ऑब्वियसली कैन नॉट एक्सप्लेन हाउ स्पीकर्स कैन प्रोड्यूस एंड रिकग्नाइज वेल फॉर्म्ड सेंटेंसेस। So well, dear student, that was all about word association, class association, and then we discuss about stats theory of word class association. I hope कि आपको आज का जो concept है वो clear हो गया होगा. So see you again next time with a new lecture. Thank you.